था। It's a very, very known name from the Old Testament also. पुराने करार में इसके बारे में आप लोगों ने सुना है। An ancient town, thousands of years before even Jesus was born. हजारों साल पहले यीशु मसीह के जन्म से पहले ही ये शहर मौजूद था। At one point, and I'm saying at one point, it had the biggest seaport in all Israel's towns on the shore. इजराइल में सबसे बड़ा जो बंदर कहते हैं ये शहर में था। Not anymore, now Ashdod does. अभी नहीं जोड़ना है अभी लेकिन पहले उस पुराने ज़माने में यही एक सबसे बड़ा बंदर था। But still, we are here because we are Christian, right? So who can tell me what's the importance of Jaffa for us as Christians? Why are you coming here to visit this place? जाफा का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है पुराने करार में, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर आए हैं? कौन बता सकता है? कोट है और अपना साइमन पीटर का घर, पीटर हाउस एंड यार कोट। It's not Peter's house. It's Peter's friend's house. हाँ, But what's the importance? पुराना करार, पुराना करार से, ओल्ड टेस्टामेंट से। ओल्ड टेस्टामेंट में सलोमन के राजा के समय में यहीं से इसी समुद्र से उनका मंदिर के लिए ये के लिए इसी पोर्ट से बेबीलोन से लकड़ियाँ आता था। लेबनान से। Solomon and everything was going from here to build a temple in Jerusalem. That's for the Old Testament. हाँ ये I'm saying for Christian. For Christian. अच्छा क्रिश्चियन। यहाँ से नवीन लोकांसाठी ही सुरुवात झाली जेंटाईल। और जेंटाइल एक्ट 10 का जो बुक ऑफ एक्ट 10 कॉर्नेलियस वो नन के सन था, ठीक है? और उसको That's it. Two major things happened in this town. One of them, if it didn't happen, believe me, Christianity won't spread around the world. दो चीज़ें यहाँ पर होती है, दो घटनाएं यहाँ पर घटी थी इस जगह पर। अगर वो नहीं होता, पहली चीज़ अगर नहीं होती थी तो ये जो मसीहत है पूरे जग में नहीं फैलती। The first thing, St. Peter would come here so often because he had a friend of his called Simon too. Peter is Simon, but his friend too is called Simon, and he was a tanner that works with the skin of the animals. So he would come here so often, and at one time he raised a girl from death. Her name was Tabitha. This happened in Jaffa. That's after the Pentecost, after the Holy Spirit came upon him, and he could heal like Jesus told him before he ascended to heaven. So पतरस यहाँ पर हमेशा आता था। पतरस का एक मित्र था जिसका नाम साइमन है, जिसके घर पे वो हमेशा आता था। और आपको पता है कि तबीता करके एक जो स्त्री थी उसको वो मर गई थी, लेकिन उसको जिंदा किया गया। तो ये वो जगह है। The second thing, which is the most important thing in Christianity, it started with the Pentecost in the upper room, and the second part, we call it, the part 2, part B, was here. So पहली बात ये हुई थी कि पेंटेकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा वो 120 लोगों के ऊपर उतर कर आया था, और वो पहला भाग था, और दूसरा भाग यहाँ से शुरू हुआ। And what is that? As I told you, spreading Christianity all over the world. ये जो मसीहत है या क्रिश्चियनिटी है पूरे जगत भर में यहाँ से फैल गई। How is that? वो कैसे? St. Peter was here visiting Simon, his friend. पतरस उसके दोस्त को मिलने के लिए यहाँ पर, वो जो साइमन है यहाँ पर आया था। You know the story from Acts? I'm going to say it fast. प्रेरितों की किताब में जो घटना बताई गई है, आपको पता है? Peter was hungry and he was tired, so he sleeps on the balcony of the house. विजन देखता है। पतरस बहुत भूखा था,
और वो जो बालकनी रहती है घर की वहाँ पर सो गया था. And he had a vision, the angel coming down with a big plate of food, the platter, big platter, with all kinds of food that contained food Jewish people do not eat, and we'll explain about that. So पतरस एक दर्शन देखता है. उस दर्शन में एक बहुत बड़ी प्लेट देखता है और जहाँ पर बहुत सारा खाना रखा हुआ है और स्पेशली ऐसे प्राणी भी है उस प्लेट में जो एक यहूदी को खाने के लिए अनुमति नहीं देता. व्यवस्था ने अनुमति नहीं दी थी. They eat only food that is called kosher, which is the meaning of it like right food. Right is the opposite of wrong, right food. So, व्यवस्था ने ऑलरेडी कौन से प्राणी खाने हैं और कौन से पक्षी को खाना है. मतलब शॉर्टकट में अगर बताना चाहूँगा तो जैसे सुअर खाना नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारे मसीह लोग सुअर खाते हैं, तो उसके बारे में वो कह रहे हैं लगभग. They cannot eat pork, for example. वो सुअर नहीं खा सकते. They cannot eat meat mixed with dairy food like cheese. तो जो दूध के जो पदार्थ है उसके साथ मटन नहीं खा सकते. Cheeseburger, they're not allowed to eat it. चीज बर्गर उनको मना है खाने के लिए. That's why if you remember in Cana, I told you at one time Jewish people ate in plates made of stones. हम लोगों ने देखा था कि काना में हम लोगों ने देखा था कि बोला था कि जो यहूदी लोग हैं पत्थर के प्लेट में खाना खाते थे. Because let's say they made a mistake and they mixed some cheese with some meat or some yogurt with some meat in a plastic plate or a metal plate, a plate made of metal. They cannot eat it by a mistake. They do it. They threw the food and they have to throw the plate. Okay, अगर Not the stone. Plate made of metal and wood. ओके अगर कोई भी प्लेट प्लास्टिक या धातु की बनी हुई है और समझो कोई भी मांस दूध के कोई भी पदार्थ के साथ समझो दही है या फिर चीज़ है उसके साथ अगर मिक्स हो जाता है बाय मिस्टेक तो भी वो प्लेट के साथ वो खाना फेंकना पड़ता था. लेकिन अगर वो प्लेट प्लास्टिक या मेटल की हो तो. But if it was made of stone, they can throw the food, wash the plate and re-eat in it. It's okay. अगर वो प्लेट पत्थर की बनी हुई है तो वो खाना फेंक सकते थे, लेकिन वो प्लेट को साफ करके वापस से उसमें खाना खा सकते थे. Because stone doesn't keep the impurity inside. क्योंकि जो पत्थर होता है वो कोई भी इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धता अपने अंदर रखता नहीं है. Now you understand why the jar in Cana was made of stone. तो आपको पता इसलिए पता है क्योंकि वो जो काना में जो वाइन बनाई थी मतलब दाखरस बनाया गया था उसके जो घड़े थे वो पत्थर के थे. So Peter sees in the vision a plate full of meat and cheese and shrimps and pork and grapes and fruits and vegetables of so many kinds. And he tells the angel, I am sorry, but I am Jewish. I cannot eat this food. And what the angel answers? Whatever God offers you, you eat. So जब भी वो स्वर्गदूत उसको कहता है कि वो जो प्लेट होता है बहुत बड़ा और उसमें बहुत सारा खाना होता है, फ्रूट्स है, दूध है, मांस है, प्राणी का जो मांस वगैरह है, और फिर पतरस उस स्वर्गदूत को कहता है कि मैं नहीं खा सकता हूँ ये खाना. लेकिन फिर वो स्वर्गदूत उसको क्या कहता है सुनते हैं. From that time, Christians almost eat everything. तो जो मसीह लोग थे बहुत सारा खाना मतलब बहुत सारे प्रकार का खाना खाते थे. But the inside meaning of the platter was not The just food, about yeah. food and eating. तो ये जो बहुत बड़ी प्लेट पतरस के सामने स्वर्गदूत लेके आया था वो बेसिकली खाना नहीं था. At the same time, there was someone called Cornelius who was a centurion. A centurion is a big soldier, a captain soldier with 100
soldier under him. Century, 100 years. Centurion is a Roman soldier with 100 soldiers in command of him. तो उसी समय में कॉर्नेलियस करके शताधिपति मतलब जिसके अंडर 100 रोमी सैनिक काम करते हैं, ऐसा एक बहुत बड़ा अधिकारी जिसके बारे में हम सुनेंगे, जिसका नाम कॉर्नेलियस है. And this Cornelius, he was living in Caesarea. Remember the Caesarea, word yeah. Caesarea? We saw We that. passed Yeah. by when we were coming. And this Cornelius had a vision. The Lord tells him to call for Yes. Peter to come and Baptize him, yeah. in Caesarea, and to send 2 soldiers calling for Peter, and that Peter was in Joppa. जोपा. तो ये जो कॉर्नेलियस को भी एक दर्शन आता है परमेश्वर की ओर से, ये कहते हुए कि तेरे पास के जो 2 सैनिक हैं, तू पतरस के पास भेज, पतरस को बुला ले और पतरस के हाथों से बपतिस्मा ले. और पतरस तब कहाँ था? उसका जो मित्र था, दोस्त था, जो यहाँ पर जोपा में रहता था, उसके साथ वो रहता था. तो ये वो जगह है जहाँ पर पतरस अपने मित्र के साथ रहता था. And at that time, believe it or not, nobody could be saved by Jesus unless he was Jewish. Jewish. तो उस समय में कोई भी यहूदी के बगैर किसी का भी उद्धार नहीं हुआ था. सिर्फ यहूदी लोगों का ही उद्धार हुआ था, अन्य जाति का उद्धार नहीं हुआ. That means if you were a Gentile, a Roman, a Greek, a Canaanite, anybody, and you accepted Jesus, you were supposed to be baptized, right? Like all other Christians. First, you have to convert into Judaism, because Christianity wasn't a religious, it was a belief. You have to be Jewish. When you are Jewish, then you can say, I accept Jesus, and they will baptize you. So Gentiles were not allowed to be baptized until they convert to Judaism. So ऐसा था कि अगर आप रोमी हो, रोमन हो या ग्रीक हो या कैनानाइट हो, आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकते थे, लेकिन आपका बपतिस्मा नहीं हो पाता था क्योंकि आप अन्य जाति थे. तो जब तक आप यहूदी नहीं बनते हो, तब तक आपका बपतिस्मा नहीं होता था. तो सिर्फ यहूदी लोगों का ही बपतिस्मा होता था, अन्य जाति को बपतिस्मा देने की इजाज़त नहीं थी. And Peter was so strict about this. He had so many disputes with Shaul or Paul. We call him Paul. You call him Saul? Paulus. He had so many disputes because Paulus, the Jewish guy, the one who wanted to kill Jesus and the disciples, actually the disciples because Jesus was crucified before, he was easygoing. He said, why don't we ask the Gentiles to be saved by Jesus? Peter said, no. They have to be first Jewish, then be saved. So काफी बार पतरस और पौलुस का झगड़ा होता था. पौलुस भी यहूदी था जो पहले जो क्रिश्चियन लोग हैं, जैसे मसीह लोग हैं, उनको सताता था. लेकिन यीशु मसीह से मिलने के बाद, मतलब जो दर्शन उसने पाया था, उसके बाद जब वो मसीह बन गया, तो हमेशा पतरस के साथ उसका झगड़ा होता था. ये कहता था कि क्यों नहीं हम अन्य जातियों को भी बपतिस्मा दे. लेकिन पतरस इस बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था कि मैं किसी भी गैर यहूदी को बपतिस्मा नहीं दूंगा. At that time, Peter had the vision, and there is someone knocking on the door. जैसे ही पतरस ने जो भूखा था, अपनी दोस्त की बालकनी में सोया था और ये दर्शन को देख रहा था कि बहुत बड़ा प्लेट है जिसमें बहुत सारा खाना है, और उसी समय में उस घर के दरवाजे पर क्या होता है? टक-टक होता है. No. He opened the door, and 2 soldiers are calling him to go to Caesarea. और फिर वो जब जैसे दरवाज़ा खुलता है, 2 रोमी सैनिक को वो देखता है और वो कहते हैं कि हमारे साथ सिसेरिया चल. To baptize Cornelius. तो कॉर्नेलियस को बपतिस्मा देने के लिए. Then He understood he the vision. understood the vision. It's not only about the food.
पतरस को वो जो दर्शन परमेश्वर ने दिखाया था उसके बारे में पता चलता है कि ये खाना नहीं था, लेकिन ये जातियों के बारे में, यहूदी और अन्य जातियों के बारे में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। आमेन आमेन हालेलुया। Said that who are you to forbid from those who accept the Lord not to be baptized? You have to baptize them. तू कौन है जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनको बपतिस्मा लेने से रोकने वाला? He goes to Caesarea and he baptized Cornelius with some of the soldiers and Cornelius' family. और फिर वो रोमी सैनिक के साथ कॉर्नेलियस के घर जाता है सिसेरिया, और जितने भी लोग बपतिस्मा लेना चाहते थे उनको वो बपतिस्मा देता है। Cornelius is the first Gentile in Christianity history that was baptized. तो कॉर्नेलियस एक ही ऐसा शताधिपति था जिसका बपतिस्मा जो अन्य जाति से था हुआ था। After that time, all the disciples went all over the world, baptizing whoever accepting Jesus as a Savior. फिर यीशु मसीह के जो 12 शिष्य हैं पूरी दुनिया में फैल गए, और जितने भी लोगों ने यीशु को स्वीकार किया उन सारे लोगों को उन लोगों ने बपतिस्मा दिया। That's when Christianity. और इसी की वजह से उसके बाद ये जो क्रिश्चियनिटी है पूरे जगत भर में फैल गई। The church behind me is